Welcome back to MB Talk, presented by MB Grami, the voice of bold minds and real stories. Before we dive in, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon so you never miss an inspiring episode. Today we are talking about taking dreams beyond borders, literally. Our guest is Mr. Navin Pathak, the founder of Entry USA, a company that helps Indian businesses launch, scale, and succeed in the United States. Entry USA offers a single point of entry and expansion from company setup and compliance to 3PL warehousing, customs, and logistics, B2B sales, facilitation, and even L1A work visas. Their unified approach, Sow and Grow, helps entrepreneurs seamlessly turn ambition into action and build a strong presence in the US market. We will be discussing global business expansion, Indo US collaboration, and what it really takes to succeed internationally. Navinji, welcome to MB Talk. It's great to have you with us. आज काफ़ी सारी बातें करेंगे। पहले तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नवीन जी कुछ अपने बारे में बताइए। Parth, first of all, thank you so much for inviting me. I came to this country 1994 and engineering है मेरा background और उसके बाद खैर मेरी वाइफ और किड्स यहीं पर हैं, मेरे लॉज यहीं पर हैं, पेरेंट्स मेरे दिल्ली में रहते हैं, ब्रदर मेरा आयरलैंड में रहता है और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज खुलती जाती हैं हम उसमें चलते रहते हैं, बस वही नवीन पाठक को डिफाइन करती रहती है। वाह वाह वाह। आपने जैसे बताया कि आपका बैकग्राउंड टेलीकॉम में रहा है, सिक्योरिटी में रहा है, तो उसके रिलेटेड कुछ अपने बारे में बताइए। वो बैकग्राउंड का क्या है? वही बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, मेरे को जॉब मिला स्टैनफोर्ड टेलीकॉम में। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स ने एक स्टार्ट ये शुरू किया था स्टैनफोर्ड टेलीकॉम, तो जॉब मिला, बहुत बढ़िया था। और इंटरेस्टिंगली जॉब तो मेरे को जब मैं स्टूडेंट से बैचलर्स में फिनिश किया अपना कोर्स, तो समहाउ मेरी शिफ्टिंग से पहले मेरे पास एक अपॉइंटमेंट लेटर आया था, वो था स्टैनफोर्ड टेलीकॉम का। जो बाकी आया वो कभी मेरे तक पहुंचे नहीं। सो इट जस्ट बाय लक कि मैं टेलीकॉम में आया और उसमें भी सिक्योरिटी में आ गया, बिकॉज हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था, हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे वो था यूएस डिफेंस के लिए, डिफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एजेंसी और फेडरेशन ऑफ एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। सो नहीं, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। सो मेरा काम था सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो डिफेंस पे प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया। फिर 9/11 हो गया। 9/11 के बाद 2003 तक ऐसा हुआ पार्थ कि मेरे अपने खुद के लिखे डॉक्यूमेंट्स की मेरी एक्सेस खत्म हो गया। तो हमारे करीबन 3 फ्लोर का बिल्डिंग था एंड देन द बेसमेंट। सो मी एंड my room partner at that time, we were asked to move to the ground floor from the 3rd floor, the most secured environment where we were hosted to work on projects. And eventually, even if we have to move in the corridor, somebody has to be with us. So I worked, but during my tenure in as security engineer, I would go to facilities like Defense Information Systems Agency's facility in Alexandria, Virginia, where I would work on highly secured scenarios, building prototypes and designing stuff. But unfortunately, with 9/11, government made it very strict norms. I was, asked to leave technically because I couldn't have worked anymore. But my experience was such part that I could not have worked in any private company. And no government contractor will hire me. So I was out of job. No. I went to India, by the way, Okay. to get a job, to Okay. move to India. I was ready for that too. Okay.
Unfortunately, with my experience, I was overqualified, so no company, including Wipro, Infosys, or you name it, hired me. So I had no option. So क्या हुआ कि वो बैक सीट लेना पड़ा, तो H1 से H4 पे आया और मेरी वाइफ H4 से H1 पे चली गई. Oh. So this was a very defining moment for me because I had to start something new then. So अब मैं क्या करूँगा? मैंने एक कंपनी खोली और उसमें काम करना तो अलाउड नहीं है, तो काम नहीं किया, बट इंडिया में सपोर्ट किया ताकि काम हो. Okay. बट एनरॉन हो गया क्योंकि वो अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग की कंपनी खोला था. तो एनरॉन का कुछ ऐसा बड़ा इशू हुआ कि जिसके अंदर आउटसोर्स करना गड़बड़ हो रहा था, मुश्किल हो रहा था. सो दैट ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू एंट्री इंडिया. Okay. और उस एंट्री इंडिया से हमारा जो जर्नी शुरू हुआ एज एन एंटरप्रेन्योर, 2008 में हमारा ग्रीन कार्ड आया एंड देन आई वाज फुल फ्लेजेड वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स. और उसी का जो राउट है, वो उसी के राउट पे आज तक जो भी मेरे पास है, जो मैंने किया है, वो उसी राउट से आया है. Okay. You were here in 9/11, right? How was that experience? See, my building in Virginia, in Reston, Virginia, was next to CIA. Okay. So when the third plane or the fourth plane was they were not able to figure out. Oh, third plane, I think. That was flying towards Pentagon. Okay. We could see hordes of cars leaving CIA, and then the road was blocked, and everybody was frantically looking around. What do we have to do? So, बड़ा ही scary experience था भाई, क्योंकि no idea at that point of time, and we were right in the middle of those areas where जहाँ पे सब defense contractors थे, including CIA के offices थे. So it was having experience very bad. As you said that you were in the security, right, and with the government of US. This might be a harsh question, but why couldn't government track or trace the attack of 9/11? What happened exactly? मुझे बहुत से unknowns हैं. The degree of separation at that time was 6. Every 6 person that you know, so you know that the social media इतना prevalent नहीं था, and between different departments there was no movement of data as such. Everybody was working in their own isolation. Okay. So because of those, you can say mismatch of the movement of data, ये challenge आया US के ऊपर 9/11 का. And I think that was the reason where Department of Homeland Security came up, and then the data started to move from one department to another. So this is how, in my perception, what I saw during my tenure was missing, is the movement of data. Right. Coming back to you again, as you said, you opened Entry India. That started your journey as an entrepreneur. हमें ये बताइए कि एंट्री यूएसए का कंसेप्ट कैसे आया, उसके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे स्टार्ट हुआ? Yeah. So Entry India, when I started to work on Entry India, so I was helping NRIs to expand businesses in India because NRIs बहुत पैसा remit करते हैं. Right. So I wanted to see that how they can convert that money into business in India for their family members, so that उसका रिटर्न उनकी फैमिली को भी मिले और उसका रिटर्न वापस एनआरआईज को भी मिले. Right. But in the journey हमने बहुत से टेक्निकल प्रोजेक्ट्स भी किए, एजुकेशन में भी किए. इनफैक्ट एक टेक्नोलॉजी ऐप लॉन्च किया ड्राइवर ऑन डिमांड के लिए. But because of the network I was building in India, I would go to India very often, 4 times in a year maybe. So people start to ask me, since I'm based out of India, working with American companies to expand in the Indian market, how about you help us start in US? Question बहुत valid था because मैं US रहता हूँ. So first I ignored it. I would say, you know what, अगर वो कंपनी खोल रहे हैं तो आप उनके पास चले जाएं, मैं जिनको जानता हूँ. Right. But the knock was getting louder.
वी वांट टू बी देयर। सर यार ये अपॉर्चुनिटी तो आ रही है पार्थ, इसे तो ग्रैब करना होगा। बिल्कुल। सो दैट वाज द स्टार्ट कि क्या करें। अच्छा एंट्री इंडिया तो है, लेकिन हमने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया था पार्थ। इन 2004, 5, 6 के अंदर ही मैंने बहुत से डोमेन्स ले लिए थे। उसमें एंट्री अमेरिका भी था, एंट्री इंडिया भी था, राइट, एंट्री चाइना भी है मेरे पास, एंट्री अफ्रीका भी है, वाह, एंट्री एशिया भी है। बट मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चला, तो एक कोई ईमेल पे आया होगा नोटिफिकेशन, मेरा मिस हो गया, वो एंट्री अमेरिका मेरे हाथ से चला गया। बट दैट वाज माय स्टार्ट इन 2006, जब मैंने ये डोमेन्स विचार कर रहा था क्या करें। ये सबकॉन्शियसली सब चाह रहा में ये भविष्य में, फ्यूचर में ये होगा, बिल्कुल एक्सपैंड होगा, बिल्कुल। लेकिन अब जो एंट्री यूएसए का मतलब जो है, जैसे आपने पूछा कि वो कहाँ से आया, वो उसकी उत्पत्ति हुई इस तरह से थी कि बिकॉज ऑफ माय मूवमेंट इन इंडिया, माय नेटवर्क इन इंडिया ग्रोइंग, सो फ्रॉम दैट एंट्री यूएसए का जो है बिगिन हुआ। Right. So, how exactly do you help Indians with Enter USA? मतलब उनको वहां से यहाँ लाके कैसे, क्या प्रोसेस रहता है? ये बात ऐसा होता है कि अननोन है, यूएस अननोन है जिसने बिजनेस नहीं किया, राइट, जिसने किया भी ना मोस्टली उसके लिए भी अननोन ही है। आप मेरे बायर बने मेरे प्रोडक्ट के, मैं ये कब बेच रहा हूँ, अब मेरे को उतना ही पता है कि आप बायर हैं, राइट, मेरे को एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन पता है, मेरे को एक्सपोर्ट के रूल्स पता है, बट मेरे को बिजनेस एक्सपेंशन नहीं पता है। बात को ढूंढ लिया मेरे को आता है, लेकिन मेरे को और किसी को ढूंढना नहीं आता है, एक्सपैंड और ग्रो करना नहीं आता है। सो ये गैप था मेजर कि पहला बात एक डर, अननोन। दूसरी बात होता है कि नॉर्मल सेंस के अंदर देखो, सर्विसेज तो मेरी ऑर्गेनिकली आई है, मतलब पहले क्लाइंट आया बाद में सर्विस आई है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले सर्विस लॉन्च की और बाद में क्लाइंट ढूंढा। क्लाइंट ने बोला कंपनी खोलो, कंपनी खोल दी। क्लाइंट ने बोला यार कंपनी तो खोल दी नवीन, पर ऐसा है कि मेरा तो सामान आ रहा है, मुझे वेयरहाउसिंग चाहिए। तो 1 का किया, 2 का किया, 3 का, ऐसे करते करते लगा तो वेयरहाउस तो होना चाहिए। फिर उसी के अंदर जो है एक सर्विस जो है एम्बेडेड है इस काम में, वो है ट्रकिंग की, यूएस कस्टम्स की। फिर उससे जो है ये ग्रोथ हुआ, यार कंपनी तो खोल दी, वेयरहाउस भी मिल गया, आई नीड समवन जो मेरे बिहाफ पे सेलिंग कर दे, मेरे को रिप्रेजेंट कर दे। वो भी हो गया, अगर सेल्स फैसिलिटेशन हुआ तो भी कहता है ये तो सारा हो गया, मैं सोच रहा हूं कि मैं ही क्यों ना यूएस आ जाऊं बिजनेस करने के लिए, तो क्या करूं, H1 लूं ना L1 लो। तो हमने L1 का शुरू किया। तो दैट वाज जस्ट नेचुरल ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस, जिसने यूएस में बिजनेस करना है, इंडिया से या वर्ल्ड में कहीं से भी करना है, इंडिया से करना है, तो आप बोलो यार खुद आके बिजनेस करोगे, दिस इज योर बेबी, राइट। तो मैं तो सरोगेट मदर हुआ आपके प्रोडक्ट का, लेकिन अब आप खुद आके संभालोगे तो बहुत अच्छा है। तो L1 आ गया। और क्या हुआ, वो इस मिक्स, इस जो भी बन रहा था, ये जो जिस डायरेक्शन में दिशा में जा रहा है, उस दिशा में बहुत सी चीजें ऐसी भी थी जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती थी। कभी इंडियन कांसुलेट बुला रहा है या कोई ट्रेड अथॉरिटी बुला रही है, चाहे इंडिया में, यूएस में। लेकिन आइडिया ऐसा उत्पन्न हो रहा था कि भाई प्रोडक्ट तो चलो मेरा ऑनलाइन पड़ा है, रिटेल शॉप में अगर आपका पहुंच गया, किसी रिटेल में चेन्नई बात है तो पहुंच गया, तो आप तो तैयार गए, हो गया आपका काम। लेकिन जिसका नहीं है, हो गया यार मैं दिखाऊं कैसे, तो कॉन्सेप्ट आने लगा शोरूम का, कि विजिबिलिटी बढ़ाएं, बिल्कुल, ताकि सेल के मल्टीपल चैनल्स ओपन हो जाते हैं। रिटेल में एक दुकान आपकी 4 है, 5 है, वो है, लेकिन आप कहते हैं यार मेरी विजिबिलिटी बढ़ा दो, ना जाने स्ट्रोक ऑफ लक के अंदर कौन कौन आने वाला है, हमें पता है कौन आने वाला है, लेकिन फिर भी किसकी बायर को आपका ये डिजाइन भा जाए, अच्छा लगे, और आपको यार आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट, और वो कह सकता है कि आई वांट टू गेट योर प्रोडक्ट एंड सेल माय लोकल मार्केट। सो उससे जो कॉन्सेप्ट ओपन हुआ, दैट वाज शोरूम, जिसके थ्रू यूएस इंडिया कोलैबोरेटिव कॉरिडोर बना। तो पर्पस यही है कि ट्रेड आसान हो, इंडिया से जो कंपनीज आती हैं वो किससे मिले, कहाँ मिले, वो कॉरिडोर में आए, इस हब में आए, इस सेंटर में आए, यहाँ मिले, और यहाँ पे उनके प्रोडक्ट शोकेस हो, ताकि जब हम हाई टी इवेंट्स करते हैं, वेंचर सीरीज करते हैं,
डेलीगेशंस को इनवाइट करते हैं, यूएस की लोकल बॉडीज को इनवाइट करते हैं, वो आए, वो देखेंगे, विजिबिलिटी बढ़ेगी. बिल्कुल. Now someone says, I like it. And there you go. So this is the whole paradigm, but इसमें एक पॉइंट अभी मिसिंग था, वो है ई-कॉमर्स का. Right. That is the final stop. अब इसके अंदर हमारा जो फाइनल गोल है वो ई-कॉमर्स का है. Okay. अब very soon वो इसका पार्ट बनेगा and then we will be complete. Wow. Wow. Interesting. मतलब and motivational, inspirational for us. Thank you very much. काफी कुछ ऐसा है कि जो सीखने लायक है. राइट. पर आगे बढ़ते हैं. तो क्लाइंट जब आपसे सर्विस लेते हैं तो आपका अप्रोच कैसे रहता है? बात ऐसा रहता है कि क्लाइंट आपको ये कहता है कि मेरे को कंपनी खोल दो, सिंपल सा काम, पूछो कंपनी खोल दो. यस. मैं जानता हूँ उसकी नीड्स बड़ी हैं, वो ट्रेड में है, अगर वो ट्रेड में है स्पेसिफिक केस में, तो मैं जानता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी हैं. सो मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ कंपनी खोल दूंगा और काम हो गया. एक्चुअली मैं उसके लिए भी डिससर्विस कर रहा हूँ, अपने लिए भी डिससर्विस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं जो मैं दे सकता हूँ. और मैं जानता हूँ उसे चाहिए, और अगर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा तो उसकी भी डिससर्विस है, क्योंकि मुझे पता है वो भटकेगा. बिल्कुल. तो मेरा अप्रोच ये रहता है बात कि क्लाइंट से पूछता है कि उसकी स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है विनिंग की. राइट. राइट. विनिंग की स्ट्रैटेजी क्या है. राइट. उसके अब आपको उसका जवाब मिलेगा. वो ये नहीं बोलेगा कंपनी खोलना मेरा विनिंग स्ट्रैटेजी है, कंपनी खोलना बिजनेस नहीं है. एग्जैक्टली. उसकी स्ट्रैटेजी आती है, यार मैं ऑनलाइन में बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं ऑफलाइन में बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कंपनी खोलने से अगर मेरा ट्रस्ट बढ़ता है, जो नवीन आप कहते हो कि ट्रस्ट बढ़ जाता है, मैं कहता हूँ कंपनी हो आपकी तो ट्रस्ट बढ़ेगा, आप लोग तो कंपनी हो. अगर ट्रस्ट बढ़ जाता है तो मैं उस ट्रस्ट को कैप्चर कर, उस ट्रस्ट को बेस बना के सेल्स की टीम भी रखूँ. फाइनली मैं वहीं पे आ जाऊँ. तो मैं उसके लिए ये पूरा एक कैनवस ओपन कर देता हूं कि अब आप पिक करो, आपने आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी पकड़नी है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी. राइट. ऑफ कोर्स अगर आप डीप पॉकेट्स हैं, दैट मींस आप डीप पॉकेट्स का कहने वाला है कि आपका बिजनेस मान लीजिए फ्यू $1 million है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है. यदि मेरे को कोई कहता है मेरा तो बिजनेस ही $100,000 है साल का, तो मैं उसको सारा ओपन नहीं करता. आई गिव देम टाइम, बट आई टेल देम एवरीथिंग कि व्हेन दे आर रेडी. बट उनका जो एक काम उन्होंने मेरे को बोला वो मैं पूरा करके देता हूँ, और उसके बाद उनके लिए प्लान छोटा सा तैयार कर देता हूँ, और मेरे कैलेंडर में मार्क हो जाता है कि 1 साल बाद इनसे बात करनी है. राइट. ये मेरा अप्रोच है. तो जैसे क्लाइंट आया आपके पास और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, राइट, और आपने मुझे बताया कि स्पेसिफिक क्लाइंट्स के साथ अभी आप डील कर रहे हो, राइट, एंड व्हाई ओनली दोज क्लाइंट्स एंड व्हाई नॉट दीज क्लाइंट्स, कि जिनका अंडर 100 के हैं उनके साथ क्यों नहीं, और अबाउ 500 के हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके साथ क्यों? देखो ऐसा है कि मैं एक और चीज ऐड करना चाहूँगा जरूर कि छोटे बिजनेस हैं, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो शायद बड़े बन सकते हैं. जो बड़े बिजनेस हैं तो वो तो बड़े बनने ही वाले हैं, तो छोटे बिजनेस को क्यों नहीं? देखो इसके मतलब कुछ कारण है. ऐसा नहीं कि छोटा के बड़ा नहीं हो सकता है, राइट, बड़ा हो सकता है. पहली बात है बायर के लिए, अमेरिका का जो बायर है वो छोटा बायर नहीं होता. राइट. वो आपसे यही पूछेगा पहला, कितने कंटेनर दे सकते हो. छोटा बायर नहीं दे सकता पहला. हाँ, फॉर्चुनेट हो सकता है कोई, क्योंकि बोले मेरे को तो पूरे साल का अभी 1 कंटेनर दो, अगले साल के 2, उसके अगले साल 4, ऐसे होंगे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. उसको ये नहीं कहना, मना करना कि तू बिजनेस ना कर, पर ये कहना कि रेडी कब हो गया. इट्स अबाउट रेडीनेस. ओके. कि आप कितने रेडी हो. क्योंकि देखो अगर गाय ने दूध देना तो चारा खाएगी, बिल्कुल, और चारा फ्री में नहीं आएगा. आपने दही बनाना तो खट्टा लगेगा, कल्चर लगेगा. आप पड़ोसी से मांग सकते हो
कितनी बार मांग लोगे? एक बार, दो बार, तीन बार दोगे, आप तो देना ही पड़ेगा, लगता नहीं तो खर्चा लगेगा। अब वो खर्चा एक रिस्क है। $100,000 में अगर आपका रेवेन्यू है और आप लेट्स से कि 1 करोड़ के रेवेन्यू में आप 10 लाख का प्रॉफिट बनाते हो, उस 10 लाख के प्रॉफिट में आप घर भी चला रहे हो, मैं आपसे रिस्क भी करवाऊं तो वो डिसर्विस हो जाएगी। आप एक छोटा सा काम करो, आप कोई भी सामान या वेयरहाउस में मत रखो। आप चाहे FBA करो, फुलफिल में अमेजॉन करो, चाहे इंडिया से फुलफिल करो, अगर आपके पास मार्जिन अच्छा है। मार्केट को समझो, उसे देखो, फील करो। नुकसान अगर है, आपने सोचा कि चल मैं 10 लाख का प्रॉफिट है, एक साल में 1-2 लाख रुपए लगा लेता हूं, तो लगा लो। ये नहीं कहूंगा कि वो जुआ है एक तरीके से, पर ये बोलूंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क है। गैम्बल है, कैलकुलेट, यानी कि आपने ये मार्क कर लिया कि मैंने इतना खर्चा करना है, लेट्स सी, तो मैं जैसे ध्यान से आप इतना ही ये काम करो। अभी आप US बताओ कि आपको वैसे आना है, किसी से मिलने के लिए वगैरह आना है, उसका डेलीगेशन के साथ आ जाओ, ठीक है, किसी के यूनिट में आओ, बिकॉज आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल। गिव योरसेल्फ टाइम, डोंट जंप। कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने बोला आज मैं जाऊं तो कल मेरे को क्लाइंट मिल जाता है। ये रॉन्ग आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी अगर आप ऐसी सोच के साथ आते हो। नहीं, जो हमारे काफ़ी सारे ऑडियंस में जो होंगे, दे माइट बी अ स्मॉल बिजनेस, तो शायद उनको ये क्वेरी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने वो आपको पूछा कि उनको ऐसा लगे कि भाई हम कब बड़े बनेंगे। हर एक बिजनेसमैन को ऐसा होता है कि भाई मैं कब बड़ा बनूंगा। बिल्कुल, मैं मना किसी को नहीं करूंगा, एवरीवन इज ओपन टू टॉक टू मी। जैसे आपने बताया, यू हैव गाइडेड देम, जो आप गाइडेंस दे रहे हो वही उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि मेक योरसेल्फ रेडी। पहले खुद रेडी हो जाएंगे कि भाई वहां पे मुझे 200 कंटेनर फॉर एग्जांपल कल के कल भेजने हैं, तो आई एम प्रिपेयर्ड इनफ कि मैं कल भेज दूंगा। करो बिजनेस, आओ नवीन जी से मिलो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप देखिए, और क्या होता है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने बोला मैंने नमकीन बनाई। यस। ये नमकीन जो है मेन स्ट्रीम के लिए नहीं है, ये इंडियन कम्युनिटी के लिए है। इंडियन कम्युनिटी के तो स्टोर उतने ही है। अगर मैं इंडिया में हूँ, दिल्ली में हूँ, गुजरात में हूँ, मुंबई में हूँ, आंखें बंद करके जहां उंगली खोलू करूँगा वहां दुकान खुलेगी। अमेरिका में ऐसा होगा? नहीं होगा। आप कहोगे मैं वही कम्युनिटी में जाऊं जहां पे या तो इंडियन ज्यादा है या इंडियन मार्केट बड़ी है, बिकॉज वहां खोलूंगा। लेकिन वहां रखना चाहूंगा किसी रिटेल के साथ, तो रिटेल में तो दुकानें इतनी होंगी, आप इंडियन दुकान तो बना नहीं लोगे। बिल्कुल। दुकानों में उतने एरिया होगा, उसमें उतने शेल्फ होंगे, उस शेल्फ पहले से भरे पड़े हैं। अब आपकी नमकीन अगर मैं घुसेड़ूंगा तो किसी की नमकीन गिरेगी। जैसे ही किसी की नमकीन गिरी, वॉर शुरू हो गया, गेम ऑन। वो गिरने नहीं देगा और आपको घुसना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखो कि आप गेम क्या बनाते हो, डील क्या स्ट्रक्चर करते हो, है ना, रिटेल चेन के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, डिस्काउंट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, क्लाइंट्स के माइंड के साथ, प्राइसिंग के साथ। रेडी हो लड़ने को, रेडी हो एक साल में लॉस लेने को। एग्जैक्टली। अब वो रेडीनेस कैश से आती है। तभी अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आप कहते हो ये मैं लगा सकता हूं एक अमाउंट, यानी कि पूरा लगाना ही है, ये है कि ये है, आई एम रेडी टू गो इनटू दिस कंपटीशन एंड बी प्रिपेयर्ड एंड विद माय रिसोर्सेज। तो उस समय ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि आप कितना रेवेन्यू बनाते हो, कितना आप लड़ सकते हो, वो प्ले कर जाता है। हमारे गुजरात में कहावत है, जेटलू गुड़ एटलू मीठू, यानी जितना गुड़ उतना मीठा होता है। ये वही चीज है कि जितना आप रेडी हो उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं।
You operate from both New Jersey, USA and New Delhi, India. हाँ जी. So, how does having on-ground presence in both geographies influence your operations and client experience? First, trust. Being in the market here, I'm here, anybody can visit me, so उसका एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है. और ऑन द ग्राउंड सपोर्ट होने से आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज ज़्यादा पता लगती हैं. अब उसमें ऑफकोर्स टाइम जोन, लैंग्वेज, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. इंडिया में टीम है तो किसी को ये ढारस है ना, ये कि भाई देयर इज अ टीम हियर दैट आई कैन टॉक टू. Yes. Yes. Those things come into play, become very critical, very important from both the sides. कि हमारा एक टीम बैठा है, फोन उठाएंगे तो बात हो जाएगी. This becomes very critical. Yes. मेन चीज तो है ट्रस्ट, जैसे आपने बताया कि और यहाँ पे सामान पहुंच गया पर यहाँ का बंदा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. एटलीस्ट मेरे पास ये तो है कि भाई मैं दिल्ली में जाके मिल लूँ, वहाँ से वो लोग कुछ तो पता करवा लेंगे, तो बात कर लेंगे. राइट. क्योंकि दिल्ली में टीम है, वही टीम वहाँ पे भी है, यूएस में भी एक टीम है. बिल्कुल टीम है. एटलीस्ट वो लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरा टाइम जोन मैच नहीं हो रहा है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा. राइट. करंटली ऐसा केस हो रहा है. This is very, very nice. Let's walk through a typical client journey from ideation to being fully operational in the US. What are the big phases and what are your key responsibilities in each? हर एक बिजनेस अलग होता है. राइट. देखो, बहुत सिंपल. इंडिया में वो क्लाइंट एक एक्स अमाउंट एनुअल रेवेन्यू या टर्नओवर कर रहा है, बिजनेस कर रहा है. अमेरिका में वो स्टार्टअप है, अमेरिका में वो आइडिएशन है, इंडिया में आइडिएशन नहीं है. हम इंडिया की कंपनीज को अमेरिका ला रहे हैं. राइट. तो सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, पर ये ऑडियंस को जानने में इंटरेस्ट होगा कि व्हाट्स द अमाउंट, मतलब क्या रेवेन्यू है जो ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे वो स्टार्टअप हो सकता है. कहाँ से, मतलब कौन सोच सकता है, कितना रेवेन्यू करने वाला बिजनेस बंदा सोच सकता है. देखिए, अब चलिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया लगेगा, इंडिया में एटलीस्ट, कि अगर आप कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या, जो मैंने पहले कहा था कि आप कहते हो कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके मेरी विनिंग आती है, और लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, वो स्ट्रैटेजी है L1A की. सिंपल एग्जांपल. जो L1A की अगर स्ट्रैटेजी है तो मैं आपका रेवेन्यू जरूर जानना चाहूँगा, क्योंकि L1A की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर यूएस आना है तो आपको कुछ लोग हायर करने हैं. राइट. आपको जो यूएस आना है और कुछ लोग हायर करने हैं, आपको ऑफिस चाहिए, सैलरी देना है, घर चलाना है, वाइफ बच्चे भी आएंगे, आपके स्पाउस आएगा, मतलब कोई भी हो सकते हैं. वाइफ L1 पे आई है तो हस्बैंड L2 पे आए हैं डिपेंडेंट वीजा पे. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, अगर हमें 2 लोग हायर करने हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी में तो वो 2 लोग की कॉस्ट बहुत होगी. आप ऑपरेशंस का या डेवलपमेंट का तो बंदा नहीं लेकर आओगे, लेकर आओगे सेल्स का. अगर आप एक्सपोर्ट में भी हो तो भी आपका सेल्स के लोग हायर करोगे. तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं कि एवरेज सैलरी जस्ट फॉर द फन ऑफ इट $80,000 a year, आपने अगर 2 लोग हायर करने हैं, $160,000 हो गया. आपने खुद की सैलरी भी ऐड करनी है. मान लो आपने बोला मेरी भी 80 होगी, $240,000 हो गया. 2.5-3 करोड़ तो हो गए. 2 करोड़ हो गए. तो अब आप अंदाजा लगा लें कि कितना जरूरी बन जाएगा कि अगर L1 है. लेकिन आपने बोला मैं कंपनी ही खोलूंगा, इसलिए क्योंकि मेरा क्लाइंट कह रहा है कि यूएस की कंपनी में आप कंपनी खोलो, मैं इंडिया पैसे नहीं दूंगा. लेकिन काम मैंने इंडिया से ही करना है. तो ठीक है, तो मतलब जो है अगर आपने $800-900,000 लगा भी दिया, इस डील ओके, आपने कुछ और करना नहीं है. तो उस केस में आपकी सैलरी, अगर आपकी इनकम अगर पूरे साल की 12 लाख रुपया भी हुई, इवन देन दैट्स अ बिजनेस केस.
बिकॉज नाउ यू विल, बिकॉज आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। पहली बात है, मुझे नहीं लगता कि आपकी सैलरी 12 लाख होगी साल की, क्योंकि आप कंपनी खोल रहे हो, आपकी सैलरी नहीं, आपका बिजनेस इनकम। लेकिन अगर 12 लाख है भी तो भी आप बढ़ाने ही वाले हो, बिकॉज आपकी यूएस में कंपनी खुल गई है। ये सोच इन इटसेल्फ ही कितनी बढ़िया है कि एक्सपैंड करने के लिए मैं यूएस में कंपनी खोल रहा हूं, सो दैट मैं क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकूं एज ए यूएस कंपनी। ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ये थॉट ही अपने में इतना बड़ा है कि आपको ग्रो कर देगा। तो मैं रोकूंगा किसी को नहीं, चाहे आइडिएशन भी हो, पर यह है कि देखूंगा जरूर, ताकि उन्हें गाइड कर सकूं। मैं रियलिटी दूंगा, ख्वाब नहीं दूंगा, बेचूंगा नहीं, दिखाऊंगा जरूर, पर अभी अगर आप खरीदने के रेडी नहीं तो नहीं दे रहा मैं। तो वापस वो पॉइंट पे आ जाता है कि आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं? भाई पहला तो यही है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अननेसेसरी रिस्क ना ले, राइट। और मैं ताकि उसे रोक सकूं, ये मत कर, हाँ, यू आर नॉट रेडी येट, वेट अप, राइट, टॉक टू मी आफ्टर 6 months। राइट, और उसके बाद अगर होती भी है, भाई कंपनी खोल दी, कई लोग होते हैं पार्थ इंडिया से, जैसे डेलावेयर कंपनी है, हर कोई ये शोर मचाता है डेलावेयर में खोल दो। डेलावेयर कोई सेफ हेवन नहीं है कंपनीज का, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टेट ही है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। तो कई बार नहीं पता मैं कौन सी स्टेट में कंपनी खोलूं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्सस आ जाता है कि भाई आप कहाँ, आपका एम्प्लॉय है, पार्टनर है, ऑफिस होगा, वेयर हाउस होगा, अगर वो भी नहीं है तो कन्वीनियंस देखो। ठीक है, अगर आप गुजरात से आते हो, इंडिया में कहीं से भी आते हो, थोड़ी देर के लिए गुजरात सोच लेते, बॉम्बे सोचो, डजंट मैटर। तो हम फॉर्चुनेट है, पार्थ और मैं, आप और मैं, कि हम न्यू जर्सी में हैं। राइट। आप या टैक्सेस खोल दो, टैक्सेस खोल सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं। क्लाइंट आपके बैठे हैं ओक्टी रोड में, और यार टैक्सेस खोल सकते हो, हाँ, दैट्स फाइन, नोबडी स्टॉप्स यू। बट न्यू जर्सी आओ, डायरेक्ट फ्लाइट है तो बॉम्बे से भी, दिल्ली से भी, इंडिया से, बिल्कुल बिल्कुल। पोर्ट है यहाँ पर, न्यूयॉर्क सिटी रिवर के उस पार है, 2.5 से 3 घंटे नीचे जाओ वॉशिंगटन डीसी है, 4 घंटे ऊपर जाओ बॉस्टन है। इससे बढ़िया स्ट्रेटेजिक मार्केट कहाँ मिलेगा? लेकिन कई बार ये डिपेंड कर सकता है कि आपका जो सेक्टर है वो भी डिफाइन कर सकता है। राइट। अगर मेरा सेक्टर ऑयल एंड गैस, तो टैक्सेस ही जाओ यार, तो न्यू जर्सी मत देखो। हाँ, ठीक है, तो लेकिन अगर आप न्यू जर्सी में हो तो आप इंडिया मिस नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिर भी उससे इम्पोर्टेंट बात कन्वीनियंस है। आप अपनी कन्वीनियंस देखो। कैलिफोर्निया एक्सपेंसिव स्टेट है, लेकिन कैलिफोर्निया में आपका पार्टनर है। मैं कह सकता हूँ डेलावेयर में खोलो, और कैलिफोर्निया में आप करो काम, लेकिन अगर पार्टनर कैलिफोर्निया में, तो कैलिफोर्निया में तो पहली बार तो खोलनी ही पड़ेगी स्टेट रजिस्ट्रेशन। लेकिन आप छोड़ो डेलावेयर को, आप कैलिफोर्निया ही खोलो, इवन दो एक्सपेंसिव है लेकिन कन्वीनियंट है, बिकॉज यू हैव ए पार्टनर देयर। सो यू लुक इनटू मल्टीपल फैक्टर्स, देयर इज नो वन फैक्टर दैट कैन डिफाइन इट, एंड देयर इज नो वन स्टेट व्हिच इज बेटर देन ऑल। Because if that was true, then every company formed in America would be formed in that particular state, but that's not the case. Right. So there you go. तो मेरे को ये सारे फैक्टर्स देख के उसे गाइड करना है, कोशिश करना है कि उसका एक्सपेंस भी ना बढ़े, और कोशिश ये करना है कि उसके लिए आसान हो जाए काम करना। ये मेरा गोल है। I don't make money when I say, you know what, I did that service and I'm done with it. No. I make money when my clients make money. Wow. So their success becomes primary importance to me. उससे जो है मेरे को वैल्यू मिलती है। बिल्कुल। That's what it is. Bottom line. मतलब ये आप अपने आप भी खुद बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, क्योंकि जब तक क्लाइंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा तब तक हम भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे। We are not earning till you earn. Till you earn. Absolutely, आपने एक सर्विस ली है, लेकिन जब आप ग्रो करोगे आपकी चीजें बढ़ेंगी। नबी मेरे को हर महीने कंटेनर चाहिए, बड़ा मेरा फायदा हुआ। आपका तो हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, बिल्कुल, मेरा वेयर हाउस भर रहा है, बिल्कुल जो है, और आपकी कंप्लायंसेस भी हो रही हैं, हम वो भी फुलफिल कर रहे हैं। कल आपको सेल्स भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए, वो भी आप मेरे पास आने वाले हो। बिल्कुल। तो आप, अगर आपको बिजनेस बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली मेरे पास ही आओगे ना। यस। और कहाँ जाओगे? Let's talk about
warehousing and logistics. Entry USA, Entry Open, Entry India offers 3PL warehouse, pick pack ship, returns, and integration to client storefronts. What are the biggest challenges there, and how do you assure high reliability? देखो वेयर हाउसिंग तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो हमने वेयर हाउसिंग जहाँ हम करते हैं अपनी, वो टेक एनेबल्ड है। Okay. So we have to use a lot of, we use, actually not have to, but we use a lot of technology Okay. just to bring that error rate down. Average error rate 1 से 2% है। गलती से एक गिलास की जगह 2 भेज दिया, एक शर्ट की जगह 3 भेज दिया, 3 भेजने थे 2 भेज दिए। तो इसको रिस्क को इन एरर्स को मिटिगेट करने के लिए, जीरो करने के लिए टेक्नोलॉजी लगा रखी है कि आपके पास जब कोई प्रोडक्ट आता है, भी मेरे को ये चाहिए, Right. तो आप लेने नहीं जाते आयल में, वो आयल घूम के आपके पास आती है Wow. और वो वहीं रुकती है जहां आपको चाहिए। क्योंकि जब आपने स्कैन किया ऑर्डर का, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू से पता लगता है, वो आयल चलती है, आपके पास आती है, आप सामान निकालते हो, रखते हो। Right. फिर उसकी पैकेजिंग होती है। अब जो पैकेजिंग है वो भी पहले से डिफाइन होती है उसके वेट डायमेंशंस के ऊपर प्रोडक्ट के। Okay. ये B2C की बात कर रहा हूँ, मतलब D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर, जो ई कॉमर्स के थ्रू फुलफिलमेंट हो रहा है, ऑर्डर जो ऑर्डर ई कॉमर्स से आया है, सो उसका वेट डायमेंशंस भी है। फिर फाइनली ऐसा होता है कि इससे पहले उसकी टेप लगे Right. और वो लेबल लगे और वो शिपिंग रेडी हो, उसका वेट लिया जाता है। हम नहीं लेते, सिस्टम ही लेता है, वो बेल्ट ही लेती है, बेल्ट में ये लगा हुआ है। Okay. तो बेल्ट लेती है, आपने मान लीजिए 1 कप का ऑर्डर किया, 10 में 2 पड़े, वो एरर दे देगा। उसे पता है कि इसका वेट कितना होता है, इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द पैकेज। उसे पता है Right. Right. कि उसका वेट कितना होगा। 1 थे 2 दे दिया, 2 देने थे 1 दे दिया, तो वेट बता देगा, वो पेट पकड़ लेगा, वो पैकेज जाएगा नहीं। तो ये चीजें होती हैं। फिर इसमें कैमराज होते हैं। क्लाइंट कह सकता है, बायर मैंने तो 3 कप मांगे थे, आपने 2 दिए, मुझे 3 थे, उसने बोला 2 दिए, तो आप क्या करोगे? तो कैमराज लगे। हम उसी क्लाइंट के उस टाइम पे जिस दिन वो ऑर्डर गया है, उसकी फोटो होती है, जो फोटो निकाल के देते हैं, यू गॉट 3 नॉट 2। Wow. या चैलेंजेस बहुत किस्म के आते हैं, रिटर्न्स बहुत किस्म की आती हैं। परफ्यूम दिया, परफ्यूम का कैप ठीक नहीं है, वापस आया, मैनेज कैसे करेंगे, Yeah. बहुत सी चीज़ें आती हैं। मतलब ये तो एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यस वी ट्राई टू बी एज प्रोड्यूसिंग, आई मीन टेक्निकली गो ऑन जीरो एरर लाइन्स की, एरर नहीं होना चाहिए। सो वी ट्राई टू लुक इनटू व्हाट एनी पॉसिबिलिटी, जहाँ पे गलती होने के चांसेस हो, तो उसको टेक्नोलॉजी से या अपने प्रोसेस से मिटिगेट करना। Right. मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही वैसे वैसे ड्यू टू योर एक्सपीरियंस वो आप साथ ही साथ इसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं कि जैसे 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 आपने बताया कि एरर्स पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है जब टेक्नोलॉजी और अभी तो जैसे हो गया है एआई, तो वो अगर मर्ज्ड है आपके साथ, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस के डिलीवरी में या प्रोडक्ट में कोई एरर आए, वो मतलब डिलीवर करने में जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इतनी है तो वो पहुंचेगी। Right. No, AI is being very supportive in many cases. अभी AI का सच वेयर हाउसिंग सिस्टम में तो इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन जैसे हमारी जो बैक एंड है कंपनी का, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट मैनेज करते हैं क्लाइंट्स की, उसके अंदर वी आर पुटिंग अप AI that is helping us to reduce the time it takes to fulfill a request. राइट। और डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है, स्पेसिफिक डेट निकालनी है, या कंप्लायंस का कोई पार्ट आ रहा है, सो AI plays a major role in those scenarios. There are many service providers in legal, logistics, trade consulting, and business setup. What are the key differentiators that set Entry USA apart from them? मैं आपने शुरू में एक बात की थी, बात आपने कहा था कि
वन की सोल्यूशन प्रोवाइडर है। Yes. That's what it is, right? Yes. सो हम क्या कहते हैं, इन वन कॉल वी डू इट ऑल। Wow. हर सर्विस को इंटीग्रेट कर देना। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ऑफ कोर्स सीपीए का काम कर रहा है, वेयरहाउस काम कर रहा है, कस्टम का काम कर रहा है, ट्रैकिंग का काम कर रहा है। बट व्हाट वी हैव डन इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड एवरीथिंग पुट टुगेदर एज वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू, कि अगर आप इस पे चल पड़े तो आपको कहीं दूसरी जगह कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो मैं उल्टा रन करता हूँ। सबसे पहले आप कहोगे कि भाई मेरा काम मान लीजिए ई कॉमर्स का है, तो शॉपिफाई साइट पे चल रहा है या अमेजोन पे चल रहा है, वहाँ से ऑर्डर आ रहा है और वो ऑर्डर वेयर हाउस से आके फुलफिल होता है। फिर मतलब किसी ने अगर बाय किया है तो वेयर हाउस वाले को पता चल गया है, बैंक में पैसे आ गए हैं, और मेरा सामान मैंने बाय लेट्स से ओशन भेजा था यहाँ पर और आपके वेयर हाउस में है। ठीक है, कहने को सिंपल सी बात है, ये ऐसे मैंने रन किया बैकवर्ड। लेकिन आप शुरुआत कैसे करेंगे? पहले मैं आपकी कंपनी खोलूंगा, फिर बैंक अकाउंट खोलूंगा, आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाओगे। इतनी देर में आप अपने सामान, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म रेडी होता है या रेडी है, तो ई कॉमर्स का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है B2B का। जो भी हो, आप अपना सामान यहाँ के वेयर हाउस में भेजोगे, चाहे अमेजोन फुलफिल FBA कराओगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, या 3PL FBA कराओगे थ्रू मी, और उसके बाद आप सेल्स फैसिलिटेशन का एक्सपर्ट ढूंढोगे जो आपके लिए B2B की डीलिंग्स बना रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, पार्टनरशिप बना रहा है, कोलैबोरेशन बना रहा है, जो भी है। फिर उसके बाद आप L1A वीजा करोगे, इसमें आप आओगे यहाँ पर। तो फिर आप कहते हो कि मेरे को आपका कॉरिडोर भी यूज करना है जहाँ पे मैं सामान रख के डिस्प्ले कर सकूँ। अगर मैं पूरा ऐसे रन करूँ तो फिजिकल लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर कंपनी सेटअप ही है, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो आपने जो इसका रोड मैप क्रिएट किया है, वो इतना इंटीग्रेटेड है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे को ये काम करना तो कहाँ जाऊँगा। वो यही होने वाला है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। So this helps us differentiate, as I said ना पहले, की सर्विस पहले नहीं आई, कि सर्विस पहले बनाई फिर क्लाइंट ढूंढा। जब क्लाइंट आया तो सर्विस बनी, तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो गई। मेरे को करना नहीं पड़ा, उस प्रोसेस का वो पार्ट बन गया, जिस प्रोसेस में मैंने क्लाइंट को सर्विसेज भी देनी है और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है और उसको उस रास्ते लेके जाना है, ठीक से जिस रास्ते वो जाना चाहता है। That is what sets us apart. How do you now advise clients to de-risk their US entry? भाई जो है, सबसे पहला बात है कि आप खुद ही मार्केट को समझें, अपने बायर को समझें, अपनी पॉकेट देखें, ये देखें कि आप कितनी देर के खिलाड़ी हैं जो कर सकते हैं। अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आना है। आप आए, भाई मेरा प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा है, ऐसी भी कंपनी आती है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा टेक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसको जनरल मोटर्स को जाके भेज दो। अब उस पर जो टाइम लगाएगा वो आपसे पैसे लेगा। बिल्कुल। तो काय को रिस्क ले रहे हो भाई? क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि मैं यहाँ से बैठा कहूँ कि मेरा प्रोडक्ट आप रिलायंस को भेज दो, कैसे बेचेगा कोई? बिल्कुल। और अभी आपने, अब अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, तो आपको मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनी है, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो रीजनेबल होनी चाहिए, तो आप डी रिस्क कर लेंगे। आपको भागो जरूर, लेकिन अगर आप रेडी हो तो भागो। मतलब अभी आपने शुरू किया तो आप पहले चीजें समझो। There are scenarios in which कंपनी आई, कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने कंपनी खोली, अब जब कंपनी खोली तो उन्होंने सी कॉर्पोरेशन खोली, सी कॉर्पोरेशन के बाद कंप्लायंस के पूरे पार्ट नहीं किए। कोई बात नहीं, करेगा, हम कर लेंगे जैसा वैसा, जो भी करते करते गए। इन दी एंड चैलेंजेस आ गया तो कंपनी बंद करनी पड़ी, इवन दो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंजेस करने पड़ गए। आपने कुछ कंप्लायंसेस मिस कर दिए क्योंकि अब आप बढ़ने के चक्कर के अंदर कुछ चीजें छोड़ते जा रहे थे। और अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहाँ गलती की सजा बहुत बड़ी है। जो आपको पेनल्टी लगती है वो बहुत बड़ी लगती है।
So you don't want to mess up with the system. Stay with the system. America is very rewarding country. Yes. It does reward the hard work, quality. और अगर आप इन चीज़ों पे चलोगे और अपना गुड एथिक्स रखोगे तो यू विल क्रिएट सक्सेस. टाइम लगेगा. बी प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट नॉट ओनली मनी, Right. टाइम. Could you share 1-2 client case studies where Entry USA made a measurable difference? ज़रूर. एक कंपनी आती है इंडिया से कि भाई हमें बिजनेस बनाना है, बड़ा करना है. Right. Right. तो सपोर्ट भी चाहिए. स्पेशल केस के अंदर प्रोडक्ट बहुत अच्छा था और सस्टेनेबल था. इंटेंशन बहुत अच्छी थी. Right. ये पता लग रहा था कि दम लग रहा है, और ये पता लग रहा है कि होने मुश्किल हो रही है. तो बात करना मुश्किल हो रही है, डील बनाना मुश्किल हो रही है. डील बननी चाहिए मैं जानता हूं, पर बन नहीं रही. अब जब उन्होंने कंपनी खोलने से पहले की बात है, Okay. तो अब जब कंपनी खोलेंगे तो वो आइडिया रहा कि इस प्रोसेस को डिले नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल है EIN आने में बहुत समय लगता है. Right. 5 हफ्ते 6 हफ्ते लग जाते हैं. बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, क्लाइंट रेडी है बात करने को. तो ऐसे केस के अंदर मैं खुद उस कंपनी का पार्टनर बना. बहुत छोटी माइनॉरिटी स्टेक लिया, ओनली फॉर द पर्पस कि मैं उसको शुरुआत करा के एक स्टेज तक लेके जाऊंगा. उस स्टेज के बाद आई विल सेल माई शेयर. ऑफ कोर्स उसके पार्ट्स होते हैं कि लीगल एग्रीमेंट बनता है. आपके जो है बाय लॉज या ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. Yes. आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए. Right. बट आई वॉज एबल टू फुलफिल ऑल दैट. जहाँ पे आपको 6 हफ्ते लगना था, 6 हफ्ते तो कंपनी खोलने में लगना था, बाकी काम करने में जो है और समय लगता, वो काम विदिन अ वीक हो गया. तो दैट वाज वेरी मेजरेबल. तो दैट वाज रिवॉर्डिंग ऑल्सो. 6 साल जब वो कंपनी ऐसे पोजीशन पे आ गई कि वो टेक ऑफ ले सकती है, और मैंने डिफाइन किया हुआ था रूल, जब ये रेडी होगी I will move out by transferring my shares to you at a certain cost, and that's what I did. And the company took off, and I'm happy we were able to fulfill our promises. Yes. Yes. And the company did very well. कोई और कंपनी जिसका हम नाम लेके उसके बारे में कुछ बात कर पाए? And नाम तो शायद मैं नहीं लूँगा. Right. चैलेंजेस तो बहुत से होते हैं. कंपनी है, उन्होंने चैलेंजेस की वो फ्रेट फॉरवर्डिंग में है. फ्रेट फॉरवर्डिंग में होना चैलेंज नहीं है इंडिया में, पर अमेरिका में फ्रेट फॉरवर्डिंग में जाना है. अब जब वो जा नहीं पा रही, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइसेंस लेने से पहले फ्रेट फॉरवर्डर का, कि आपको एक ऐसा इंसान, डायरेक्टर या मैनेजर चाहिए या ओनर चाहिए जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस फ्रेट फॉरवर्डिंग में हो. अब वो चीज़ समझ नहीं पा रहे, कोई मिल नहीं पा रहा, स्ट्रैटेजी बन नहीं रही. वो दे आर रेडी टू इवन हायर कंपनी, और वो कंपनी लोकल सपोर्ट नहीं है, किससे बात करे पता नहीं है, क्योंकि समय लगता है. शुरुआत कहाँ से करें नहीं पता लग रहा. तो ऐसे केस के अंदर फिर हमने लोकल जो है वो पार्टनर ढूंढा, जिसके एक्सपीरियंस को यूज किया, अपना लीगल स्ट्रक्चर बनाया, पूरा फ्रेमवर्क सेट किया जिसके अंदर कंपनी आएगी, इस कंपनी की मदद करेगी ताकि ये मार्केट में जाए और ये बिजनेस शुरू कर सके. बट एट राइट टाइम ध्यान ये देना होता है कि एट राइट टाइम दूसरी कंपनी का एग्जिट हो जाएगा एट अ सर्टेन टाइम. आइडिया रखना होता है. बट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, लीगल फ्रेमवर्क में ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. तो कईयों को वो सॉल्यूशन बनाने नहीं आते. तो अगर हम वो सॉल्यूशन बना सकते हैं तो हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत बढ़ जाता है. दैट्स व्हाट वी डिड विद दैट कंपनी, हेल्प देम
Okay. get into the business that they want to get into, और उनको सारे resources मिल गए, and now they are flourishing. अभी नवीन जी थोड़ा पर्सनल पे आएंगे जरूर. कि it must be a hectic day every day because इंडिया और यूएस का टाइम जोन बहुत डिफरेंस है. तो आप कैसे मैनेज करते हो फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ प्लस बिजनेस लाइफ? भाई ऐसा होता है कि I get up 4:15 in the morning. ओके. अभी रिसेंटली एक्चुअली आज तो मैं 1:30 के करीब उठा हूँ मॉर्निंग में, ओह. बिकॉज मेरा थोड़ा सा काम था, तो मेरे को मैनेज करना होता है मेरी टीम के साथ काम, और फिर I go to gym for 1.5 hours every day ओके. and 20 minutes का run. That is something which I need. That is my medicine. ओके. So that gives me energy also and keep me little active throughout the day. So वो मेरा जो डे खत्म होता है वो अराउंड आप लगा लो 3:34 खत्म होता है. Okay. When my son come from school, so he's in 11th grade. My daughter is in college. फिर उसके बाद मैं 90% ऑफ द टाइम काम नहीं करता, ओके. unless बहुत ज़रूरी हो या कुछ हो. ओके. ओके. So then that is a time when I try to be with my kids. ओके. जितना मतलब वो अगर उनको जरूरत है मेरी, क्योंकि मेरी बेटी कॉलेज जाती है, जब आती है तो वेरी लेट हो जाती है, और बेटे के साथ. एंड मैं शाम की मीटिंग्स नॉर्मली अवॉइड करता हूँ. राइट. नेटवर्किंग कभी करनी पड़े और ज़रूरी हो तो ठीक है, Right. I do it. But my day starts early, and then by 8:30, 8:45 I'm ready to go to bed, and then my cycle starts again. What do you recommend to audience? कितने घंटे की स्लीप जरूरी है और क्यों जरूरी है? मैं वो फॉलो नहीं करना जो मैं कहूँगा. हाँ. मैं 8 घंटे जरूर सोएं, जी. जरूर सोएं. एक्चुअली वो अमृत है, राइट. सोना बहुत जरूरी है. मैं जब भी अगर मैं अच्छा सोता हूँ तो मेरा दिन अच्छा निकलता है. लेकिन दूसरी बात जो है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. अब ये टाइम जैसा भी है, हम लोग बहुत सोशल मीडिया पे हैं, वो पुराने ज़माने वाले कंचे, गुल्ली डंडा, लंगड़ी टांग वगैरह खेला करते थे. यहाँ कौन खेलता है, बच्चा सुनिए भी नहीं. तो एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी. यस. और थोड़ा सोशल नेटवर्क जरूर रखें. 2-4 दोस्त हों जिनसे आप बात करो, ये जरूर है. ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी है. बिल्कुल. आजकल जैसे अभी आपने बात की कि ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका रीजन टेक्नोलॉजी है? देखिए, जो आप इंफॉर्मेशन एक्चुअली वन वे इंफॉर्मेशन बम्बार्ड हो रही है. जब आप फेसबुक, इंस्टा, ये वो देख रहे हो, वो वन वे है वो. अब आप पढ़ना भी चाहते हो, मिस भी नहीं करना चाहते, एडिक्शन भी हो जाती है इंफॉर्मेशन की, और वो आपका टाइम खा जाती है. यस. अगर आप उसको, उस पार्ट को काट के अलग कर दो तो आपको स्ट्रेस नहीं देगा. तो टेक्नोलॉजी इस बहाने से आपका समय बर्बाद करती है, जो उसके करके आपको जो मुश्किल होती है वो आप बयान नहीं कर पाते कि मेरा तो यार टाइम रह गया, क्योंकि आपने टाइम बहुत ज़्यादा व्यतीत कर दिया. आप काउंट करो कि आपने कितने घंटे एक हफ्ते में व्हाट्सएप पे, किसी का काम व्हाट्सएप पे हो सकता है, बट सोशल मीडिया पे निकाला है, मान लीजिए इंस्टाग्राम पे निकाला है, रील्स निकाल रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो. तो टेक्नोलॉजी का काम, एक्चुअली टेक्नोलॉजी का काम है जब हमारी, क्योंकि हम लेजी है ना, हम नहीं करना चाहते, टेक्नोलॉजी करेगी. मैं नहीं सोचना चाहता तो यही बनेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. तो ये भी हो रहा है कि मैं चलना नहीं चाहता हूँ, हाँ. तो
एआई के थ्रू रोबोटिक इतना सूट बन गया अभी, शूज उसको वो लोग नाम दिया, चाइना में आ गया अभी, स्टोर्स में अवेलेबल है शूज, जो आपको इतने तक शूज आएंगे, फिर वो आएगा पूरा, और आपने सिर्फ बोलना है कि भाई मुझे 1 किलोमीटर चलना है, वो खुद चलेगा। भाई देख लो, फिर आप कहोगे कि मेरी तबीयत खराब होती है, मतलब ऑफ कोर्स नहीं, टू स्टे फिट, आधा घंटा एक्सरसाइज करो। कोविड के टाइम पे तो मैं बेड पे ही बहुत एक्सरसाइज कर लेता था, जिम तो था नहीं, तो आँख खुली, तो आँख खुलने के बस 2 मिनट बाद मैंने प्लैंक्स कर लिए या जो भी जितनी एक्सरसाइज कर सकता था, एब्स की वगैरह, मैं वहीं कर लेता था, तकरीबन 35-40 मिनट्स एवरी डे। 35-40 मिनट्स भी नहीं, एक्चुअली से कम, आई से 20-25 मिनट्स, हाँ। एंड डोंट लीव इट, जहाँ मौका मिले, कहीं खड़े हो किचन में कुछ कर रहे हो, भाई या 5 मिनट लगे, चाय उबल नहीं रही है, चलो वेट कर ले 2 मिनट, जो 2 मिनट वेट करे ना 1 मिनट, बिल्कुल उसमें स्क्वाट्स कर लो। नो, यू लुक वेरी फिट, आप बिल्कुल, मतलब वो दिखता भी है, वो थैंक यू। हाँ, ये एनर्जी भी मतलब एनर्जी तो है ही, दिख रही है, छलक रही है, प्लस वी कॉल इट ऑरा, ऑरा बड़ा पावरफुल है, थैंक यू सो मच, क्योंकि वो रेडिएट होता है, तो जैसा मैं बोल रहा था, ऑरा आपका रेडिएट हो रहा है। फिर भी एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट अबाउट जो फिजिकल स्ट्रेस तो है ही है, साथ में मेंटल स्ट्रेस भी है, तो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर दैट, मेंटल स्ट्रेस के लिए क्या क्या करें? एक्चुअली एक तो चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके, जरूर चले, और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, माइंडफुल मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, और ये आपको आपकी मैं से काट देती है, आई से काट देती है, जब अवेयर हो जाते हैं तो आपको पता है, आप देख सकते हैं खुद को, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनवांटेड होती हैं लाइफ की, और यदि आप उन्हें कट कर दें तो जो भी उसमें से उभरेगा वो बहुत सुंदर ही होगा। तो अगर स्ट्रेस में है, लाइफ बस्टर चाहिए, चलते भी आप हैं, तो 5 मिनट बैठे, चाय पीने से बैठे बैठे, चाहे 1 मिनट ही सही, 1 मिनट आके बंद करके अपनी सांस पे ध्यान दे दो, या अपनी उंगली को जो है अपने घुटने पे ऐसे करते रहो, और 1 मिनट का ध्यान दे दो, करते रहो, उसी को सोचते रहो, सांस को सोचते रहो, और डीप ब्रेथ लेना शुरू कर दो, ऑक्सीजन भर भर के लो, ताकि आपका जब आप पेट जब लो तो पेट फूले, ऐसा लगना चाहिए, दम लगाओ, और ये कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। घर में बच्चों से और अपने पेरेंट्स से या आसपास लोगों से बात जरूर करो, बिल्कुल जरूर बात करो, जैसी भी करो, मौसम की करो, पिक्चर की करो, स्टोरी की करो, शो की करो, सब्जी की करो, दल की करो, कल की करो, पुरानी करो, पर करो। मेनली अभी यही हो रहा है ना कि अकेलापन ही मार रहा है लोगों को। इंडिया में भी, इंडिया में बहुत बढ़ रहा है अभी, बहुत बढ़ रहा है, बच्चे छोटे, मतलब जैसे पेरेंट्स हम लोग बोलते थे, हमें तो कॉलेज में सोशल मीडिया आ गया तो ये वर्ड्स पता चलने लग गए, डिप्रेशन होता है, ये होता है, वो होता है। जैसे आप हैं, पेरेंट्स हैं हमारे, सब लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, इतना स्ट्रेस होता है, मतलब उनका तो बस यही था कि ग्रोथ कैसे करके आगे बढ़े, पर आजकल मतलब काफी चीजें सोशल मीडिया की वजह से ही हो रही है। फिर भी लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, लेट्स लुक अहेड
over the next 3 to 5 years, where do you want Entry USA to be? And what new services, geographies, or platform components do you see in it? I want to see our collaborative corridor be in India, at least in Delhi, Gurgaon, and Ahmedabad, and in Andhra Pradesh, in Telangana, that area. Okay. Also in Middle East. So that's what I aim for. Another part which is looking at the current scenarios and looking at the talent that India has and looking at what all can be done for India. उनके टेक सेक्टर को और हम बड़ा कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसका एक पार्ट होता है फंड रेजिंग. So I'll very soon be getting into assisting Indian startups with good deep tech technologies, be able to get funding from US and grow. So that's my next charter. But in next 3 to 5 years, मेरा गोल है, यही गोल है ऐसा कि multiple corridors, these centers Right. from which the trade happens between India and rest of the world. From a macro perspective, what trends do you see in US-India trade, regulation, or founder behavior that excites you? But of course, आज के सिनेरियो में तो रेगुलेशन हो नहीं सकता, टैरिफ लगा दिए है ना, तो यूनिटी मेजर्स लग रहे हैं. जो फाउंडर आज कह रहा है कि मैं यूएस आने को तैयार हूँ, उसने मेरा दिल जीत लिया है, वो लड़ने को तैयार है, कुछ है उसके पास. जैसे कि वो वेट ही कर रहा हूँ कि इस टाइम पे आऊँगा तो फिर कैसे बनेंगे. अब वैसे तो कभी भी आए तो ऐसे वॉरियर के साथ लड़ने का बहुत मजा है, उसके साथ खड़े हो. बिल्कुल. पर ऐसे केस में जहाँ लोग कहते हैं डर लग रहा है यार, पैसे यहाँ भेजेंगे, मेरा सामान नहीं बिकेगा, मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. ऑफ कोर्स वो डर होना भी चाहिए, बिल्कुल प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. लेकिन मेन बात यह है कि अगर इसमें भी आगे कोई आपसे लड़ने को तैयार है, अगर उसके साथ आपने सहायता करके उसे जिता दिया ना, आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सेट है, आप लॉन्ग टर्म के लिए खेल गए, ये बहुत अच्छा है. For founders listening, for founders who all are listening, and they want to expand in US, what advice would you give in 3 to 5 concrete points? See, one part is preparation. Preparation, knowing your USPs, your plus points, your team, your product, very important. मेरे लिए 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है. आइडिया बहुत अच्छा हो और टीम बहुत अच्छी हो, लोग बहुत अच्छे. दूसरा है जस्ट डू इट. अब आपने एक बार अगर प्लान किया है, प्रिपेयर किया है, विचार किया, तो अब उसका एक्शन में लाना है. अगर हम जितना ज़्यादा सोचते रहते हैं उतना हम अपने को डिले करते हैं. तो आप आपका जो प्लान है उसको विचार करके उसको एक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है. बहुत जल्दी भी या बहुत डिले भी जो है वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं देता. या बहुत सारी ऑप्शन जैसे आपका दिमाग हिला देती हैं. अगर 2 ही दालें होंगी तो आपको चूज करना बहुत आसान है. बहुत सी ऑप्शंस ओपन कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, वो हमारे को कभी भी ठीक रास्ते पे नहीं लेके जाता. क्योंकि किसी भी एक ऑप्शन को चुनते हो तो थोड़ी देर बाद लगेगा दूसरी ऑप्शन चुनता शायद वो बेटर होती. सो व्हाट इट मीन्स इज इन वेरी शॉर्ट, प्लान करें, आप प्रिपेयर करें अपने आप को अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने टीम के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी प्राइसिंग के हिसाब से, एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से. एंड दूसरा है कि आप काम शुरू करें. जस्ट डू इट जो है, जो नाइकी का जो स्लोगन है, एंड आई लव इट, जस्ट डू इट इज द ओनली वे. दैट्स इट. अभी रैपिड फायर करते हैं छोटा सा. Let me ask you few fun questions. What's your favorite business book? Straight from the gut, Jack Welch. Okay. Who's your favorite entrepreneur? Elon Musk.
Okay. Why? The guy knows how to take risk. Your daily habit or routine that keeps you sharp. Gym. In 5 years, where do you see yourself personally? In India. Wow. Why? I love India. So, Navinji, as we wrap up, is there any message you would like to leave with our listeners, founders, exporters, or companies that are looking at an expansion in US or India? भाई वो कैसे कहावत है कि आ, कल करत सो आज करत सो अब. So you can never learn to drive in a parked car. मैं आपको कार देता हूँ, आपको कार की सीट पे बैठाता हूँ, ड्राइविंग सीट पे. कार पार्क्ड है, खड़ी है, स्टीयरिंग व्हील आपके पास है, स्टिक शिफ्ट आपके पास है, पैडल आपके पास, सब कुछ आपके पास है, कीज आपके पास है, कार नहीं चल रही. आप कार चलाना सीख जाएंगे? नहीं, नहीं सीखेंगे. कार चलाना तब सीखेंगे जब आप कार चलाएंगे. मैं जैसे मर्जी बता दूं, मोड़ आएगा वहां कैसे मोड़ना है, क्लच कैसे दबाना है, ब्रेक कैसे लगानी है, स्टीयरिंग व्हील कैसे टर्न करना है, स्टॉप साइन पे कैसे रुकना है, आपको कार नहीं आएगी. मैं जितना मर्जी समझा लूँ आपको कि स्विमिंग करना है तो उसमें हाथ कैसे चलाते हैं, सांस कैसे लेते हैं, पाँव कैसे मोड़ते हैं, तो आप बैठे रहो. अगर सो पे बैठे हो तो स्विमिंग नहीं आएगी. पानी में उतरना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा शुरू में. हजूरी के समुद्र में कूदेंगे, आप बाथटब में कूदो, लेकिन कूदो जरूर. सो मेरा कहना यही है कि अनलेस यू टेक दोज रिस्क, वो नहीं लेना की जो सजा ना, वो बहुत बड़ी है लेके हारने से. एक्चुअली लेके कोई हारता नहीं है. ये भी जो मैंने पहले कहा उसको मैं वापस ले लेता हूँ. लेके हारते नहीं है, लेके आप स्टडी बनते हो. और शुरू में हारना बेटर है देन बाद में हारना. तो खेलो और हारो, और फिर खेलो, फिर थोड़ा कम हारोगे, फिर खेलो, फिर नहीं हारोगे, फिर खेलो, फिर जीतोगे. खेलना नहीं छोड़ना. That's all. Thank you so much, Navinji, for coming here, talking with us on MB Talk. It was pleasure having you. Um, Thank you, audience, and we'll get back to you with another episode very soon. Thank you. That brings us to the end of another inspiring episode of MB Talk, presented by MB Grammy. A huge thanks to Mr. Navin Pathak from Entry USA for sharing his insights on building global bridges and helping Indian businesses take confident steps into the US market. If you are an entrepreneur ready to sow and grow and looking for a one stop solution for your US setup, from compliance and logistics to expansion and partnerships, be sure to check out Entry USA. All their details are in the description below. And as always, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon for more stories of innovation and leadership. Until next time, stay ambitious, stay inspired. This is your host, Parth, signing off.